Good morning students, welcome back to the class 11 subject business study. As we have completed our pre-midterm concept till the topic known as cooperative society, so we are carrying forwarding our further topic from same chapter, forms of business organization. Today we are going with the lecture number 16. So in today's video, we will see joint venture or joint stock company, not joint venture. Today we will see joint stock company. In that, today we will see features of joint stock company. So let's begin with the joint stock company. Today I'll read the textbook content which I am having right now, and then I'll explain you what it is joint stock company. So let's begin with the joint stock company. Please listen carefully what I am trying to say. In modern competitive world, the technological improvement and economical factors has created the needs of large scale organization. Joint stock company is considered to be the most suitable form of organization for operating business activity on large scale. So today we are going with the topic known as joint stock. In this, it has been clearly mentioned that in modern competitive world today, the technology is more important. Technology gets more importance today. Improvement on technology is regularly going on, and the large organizational needs certain more economical factors benefits. So joint stock company is the most suitable organization where the business operations are taken care on large scale. On large scale, we are talking about here the organization produce in bulk, sell in bulk, and deal in bulk. Now, I have certain points over here. A company is an association of persons forming for carrying out business activity and has a legal status independent of its meaning of its members. Here, company is an association of persons forming to carry out the business. Their legal status are independent as its member. जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मेंबर्स उसके अंदर आते हैं, वो लीगली एक मेंबर होते हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना है. सो कंपनीज एक्ट के थ्रू कंपनी को, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर किया जाता है. सो लेट्स बिगिन विद द सर्टन 5 पॉइंट्स राइट नाउ आई एम हैविंग हियर. आई विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, it is set up of registration under the Companies Act 2013 and any previous company law. आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पर रजिस्टर होनी ज़रूरी है, या फिर उनके पहले की कोई पॉलिसीज़ हो तो. 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, फिर बाद में मॉडिफिकेशन हुआ 2013 में, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 को आपको ध्यान में रखना है. अब कंपनी जो है वो एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसका खुद का कॉमन सील होता है और परपेचुअल सक्सेशन होता है. सो हम लोग यहाँ पे जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कोई भी बिजनेस करना हो, कोई भी डील करना हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे चलता है. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर बाद में IIM अहमदाबाद, इनके नाम की वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपना काम करवा के लेते हैं. ये जो कंपनी होती है ये नाम से जानी जाती है. इनका खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद का इमेज होता है, और यहाँ पे इनके पास खुद का एक कॉमन सील होता है कि ये अप्रूवल दे सके. इनके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है. ये कंपनी लोगों के साथ में काम करे, लेकिन उस कंपनी का एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल नेम होता है. द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं और उसके बिजनेस को भी कंट्रोल करते हैं. शेयर होल्डर्स जो है
वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उनके बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। जो अगर कंपनी है तो कंपनी को अगर कैपिटल लेना हो या कैपिटल रेज करना हो तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर इश्यू करते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि शेयर्स अगर हम लोगों को किसी को ट्रांसफ़र करना है तो फ्रीली ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। तो ये हमने अभी तक देखा जो था एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है और सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर कैपिटल फंड रेज करना होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स को मार्केट में हम लोग लॉन्च करते हैं जिससे मनी मिल सकता है। वेरएज अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर ईजिली और फ्रीली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक शेयर होल्डर से लेके दूसरे शेयर होल्डर के बीच में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कंपलसरी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर है या प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे शेयर ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो फ्रीली एंड स्मूथली नहीं होता। यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है अदर पार्टनर्स की। So I have gone with the introduction part of joint stock company. Now we are having 9 points of features of joint stock company. The first point is artificial person. The feature says that since the company is created by law, it is an artificial person having no body, no soul, no consent. That example, it cannot be breathed, eaten, run or talk. But like a natural person, a company can own property, incur debts, borrow money, enter into contracts, sue or to be sued. It can conduct the lawful business and enter into the contract with others. बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा और मैंने आपको रिपीटली कहा भी कि आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से ये पर्सन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, इसको भी बोरोइंग कर सकता है। कंपनी के नेम पे हम लोग बोरोइंग्स कर सकते हैं, कंपनी के नेम से हम प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कंपनी के नेम से हम डेप्ट भी पे कर सकते हैं, कंपनी के नेम पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग कंप्लेंट्स कर सकते हैं, कोई हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है क्योंकि हम लोग लॉफुली रजिस्टर्ड है। और लॉफुली रजिस्टर्ड होने की वजह से हम लोगों को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूवमेंट नहीं है, नो बॉडी, नो सोल, नो कंसाइन। They cannot breathe, they cannot eat, they cannot run, they cannot talk because they are artificial. It cannot be seen but it can be imagined as a human being. आर्टिफिशियल पर्सन है। आप बिल्डिंग को देख सकते हो, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद के नाम के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे नेचुरली ह्यूमन बीइंग आर वर्किंग। बट उस कंपनी का जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आप केस कर सकते हो, वो हमारे अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल पर्सन। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। फीचर के अंदर सेकेंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर इसके लिए बोला जाता है क्योंकि आप जब इनकॉर्पोरेट होते हो, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस को, तो उस टाइम पे आपको सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आप असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो परचेज करते हो, और साथ साथ में अगर कुछ लेके चल रहे हो तो लॉफुल आप लेके चल रहे हो। इन टर्म्स यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, कंपनीज एक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो होता है। तो यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज जो होती हैं वो सेपरेटली ओनर के लिए ही है। द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओनरशिप। ओनरशिप से असेट्स एंड लायबिलिटी को सेपरेट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 इज फॉर्मेशन। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है। साथ साथ में यहाँ पर आपको इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार से आपको
सर्टन सर्टिफिकेट्स लेने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पॉइंट नंबर 4, परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के अंदर अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी या फिर वो मेंबर नहीं रहना चाहता था तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन जब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी के अंदर जो मेंबर है अगर उसको वापस जाना चाहिए, अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, लेकिन साथ साथ में उसको नोटिस देनी पड़ती है और उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसी तरह से कंपनी के अंदर नॉर्मली एग्जिस्टेंस जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो कंपनी में नहीं आ पाता या कंपनी का मेंबर नहीं बनना चाहता तो उससे कंपनी को कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। यहाँ पे हम लोगों ने सर्टनली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाने के बाद में डेथ अकर हो रही है या कोई इंसॉल्वेंसी क्रिएट हो जाती है तो उससे बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 इज कंट्रोलिंग। यहाँ पर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो दो अलग अलग लोगों के हाथ में है। ओनरशिप मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके अंडर काम करते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो नॉर्मली बिजनेस को रन करता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के लिए और वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। वो अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। वेयर शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। शेयर होल्डर्स अकाउंट चेक कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स डिसीजन लेने में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट शेयर होल्डर्स डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते। पॉइंट नंबर 6 इज लायबिलिटी। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, फिर बाद में हमने आगे पढ़ा था पार्टनरशिप, उसके बाद में हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हर जगह लायबिलिटीज कहीं ना कहीं अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर लायबिलिटीज जो है वो कंपनी के लिए यूज है लेकिन शेयर होल्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स। The liability of the members is limited to the extent of the capital contributed by them in the company. कंपनी के अंदर जो भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। In case of the company incurs huge liabilities, then the such shareholders can be asked to contribute an unpaid balance for the share. बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर जो है वो पार्टली परचेज किए जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान बना रही है और नुकसान हो रहा है तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स के पास से पैसा लेना बाकी है वो पैसा मांग सकती है और लोगों को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो उनका जो शेयर है वो फोरफिट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। फोरफिट का मीनिंग होता है कैंसिलेशन। Creditors can be settled their claim against the assets of the company and shareholders cannot be asked to pay the company's debt. Creditors को अगर हम सेटिस्फाई कर सकते हैं तो हम अपना असेट्स भी उनको दे सकते हैं कंपनी के थ्रू। शेयर होल्डर को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ परचेज करते हैं वो कंपनी के नाम पे परचेज करते हैं। तो हमारी लायबिलिटी जो है वो सर्टन परसेंटेज तक ही लिमिट हो जाती है। पॉइंट नंबर 7 इज कॉमन सील। क्योंकि हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं शेयर होल्डर के लिए। उनके पास सिग्नेचर, उनके पास एक कॉमन सील होता है जिससे वो एश्योर करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कंपनी के लिए हो रहा है और कंपनी के बेनिफिट्स के लिए हो रहा है। The board of directors enters into an agreement with others and indicate company's approval on that common seal. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं क्या परचेज करना है, किसके साथ जॉइंट वेंचर करना है, किसके साथ आगे बिजनेस करनी है। तो ये सब चीज़ हम लोग कॉमन सील से कर सकते हैं और कॉमन सील अप्रूव करता है कि हाँ हम लोगों ने किसी के साथ में बिजनेस हैंड ओवर किया या किसी के साथ बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। एनी एग्रीमेंट with the absence of common seals are not legally bind on the company. कोई भी एग्रीमेंट विदाउट सील होती है तो उसको हम लोग लीगली अप्रूव नहीं कर सकते, वो रिजेक्टेड पार्ट है। पॉइंट नंबर 8 इज रिस्क बेयरिंग। क्योंकि कंपनी है तो कंपनी के अंदर
रिस्क भी होता है, रिस्क होने के साथ में लॉसेस भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है। तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं और रिस्क ऑफ लॉसेस की वजह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने सुसाइड भी कर लिया है, ये आप लोग न्यूज़ में भी पढ़ते हो। सो शेयर होल्डर्स जो हैं in the company, the risk of the loss of bonding by all the shareholders in an event of financial crisis, all the shareholders have to contribute to the debt or to the extent of their capital contribution. Hence, risk of the loss gets separated over the large number of shareholders. बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन इतना लॉसेस बनाती है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं उसको भी वो लोग रिस्क की तरह ले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि नॉर्मली जो डेप्स पे करने की बात आती है तो वो शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बियॉन्ड भी जा सकता है, तो शेयर होल्डर्स को वो पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9 इज ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, it is not possible to freely transfer your share from one person to another because you need a permission over there. But if I am talking about joint stock company, the shareholder enjoys the right to transfer their share from one person to another in open market or stock exchange at the price what they want or at the market price. According to that, they can transfer their shares from one person to another. We have completed our features also today in joint stock company. We have started with the introduction and then features of 9 points we have seen. In next video we will see merits and demerits, and then further we will go with the topics of types of companies in further videos. That's it for today. Thank you.